Welcome students. This is the chapter 2 of your history book. The name of the chapter is Nationalism in India. What is nationalism? Nationalism is feeling of love or pride for your own country. That means your feeling is like your country is better than any other country in the world. That means you are very proud of your country. That is the feeling of nationalism. So, in India, this feeling is connected to anti-national movement. As we all know, before 1947, India was a colony of Britishers. So, what happened was, during the anti-colonial movement, that means the national movement. During the anti-colonial movement, what happened was different sections of the society are affected differently. But because all the people in the country are affected due to the colonial period, this feeling of oneness and this feeling of unity bring them all together to fight against the Britishers. So in this chapter, we will understand what is nationalism and how this feeling of nationalism grow in India. So our first topic is First World War. So in this topic we will understand what was the impact of First World War on India. First World War कब हुआ था? It is during the period 1914 to 1918. So इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा? फर्स्ट इज बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया. तो फर्स्ट इम्पैक्ट वाज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर इन इंडिया. सो जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो उसको फाइनेंस करने के लिए पैसा कहाँ से आया? These defense expenditure were financed by war loans, and these loans were taken by British government from different countries. So war loans plus they increase taxes in our country. For example, what kind of taxes I am talking about? For example, custom duties and income tax also introduced at this time. Income tax introduced. So, पहला impact क्या रहा? They increased the defense expenditure which led to the war loans and increase in taxes. So, जो अगर taxes आप increase करेंगे तो हमारी कंट्री में जो कॉमन लोग हैं उनको बहुत ही एडवर्सली ये इफेक्ट करेगा. सेकेंड है, इट लेड टू द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. हमारी इकॉनमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए ड्यू टू द वॉर. वॉर की वजह से प्राइसेस जब इंक्रीज हो गए तो इट लेड टू द हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई उनके लिए, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी कॉमन इंसान की वो है उसका जितना भी वो प्रोडक्ट्स वो बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है मार्केट से. लेकिन अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे और उनका इनकम लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वट एवर दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर सोर्सेज दे आर पेइंग टैक्सेस आउट ऑफ दैट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज देयर डे टू डे नीड्स. So third impact was there were forced recruitment of soldiers. That means the British government forcing people from the rural area to join the army. So there was forceful recruitment of soldiers or people in the rural area. Fourth impact was there was acute shortage of food. Why there was shortage of food? This led to the famine in the country. Why there were shortage of food? Because of crop failure. It was due to the crop failure in the country.
जैसे ही अगर फूड की शॉर्टेज होगी, कंट्री में फेमाइन होगा, तो जितना भी प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोडक्शन डाउन होता है, दैट मीन्स प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, दैट लेड टू द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ goods and services, increase in prices of goods and services. तो ये एक दूसरी तरह की एक हार्डशिप कॉमन लोगों के लिए लेके आया। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ इज स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन द कंट्री। सो हमारी कंट्री में एक बहुत ही महामारी फैल गई थी, जो कि इसका रिजल्ट क्या रहा, इट लेड टू द अप्रॉक्स 12 to 13 million people died due to these kind of hardship, that is famine and epidemic. तो ये सारे हमारे इम्पैक्ट रहे वर्ल्ड वॉर 1 के हमारी कंट्री पे। तो इसीलिए जो इंडियंस हैं वो ये होप करने लगे कि जैसे ही वॉर फिनिश होगा, जो उनकी जो हार्डशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से जो न्यू लीडर्स हैं वो हमारी कंट्री में अपीयर हुए और उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल सजेस्ट किया। सो उन्होंने कौन सा मोड सजेस्ट किया, लेट अस अंडरस्टैंड। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915, because on this day Gandhiji returned to India. Gandhiji returned to India from South Africa. As we all know, साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही रेसिस्ट रिजीम था और उसमें लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो जो गांधी जी हैं उन्होंने इस रेसिस्ट जो रिजिम है इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना स्ट्रगल किया। उन्होंने मूवमेंट वहाँ पे चलाए काफ़ी सारे, जिसकी वजह से वो जो उनका जो स्ट्रगल है, उनकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस लौट के आए और इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 1915 में जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया हमारी कंट्री में। व्हाट इज सत्याग्रह मूवमेंट? इट इज़ अ न्यू मेथड ऑफ एजिटेशन in which there is basically focus upon two things. First is power of truth, and second is search for truth. That means in satyagrah, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एक जो सच्चा सत्याग्रह होता है किसी भी बैटल को बहुत ही इजीली जीत सकता है बाय मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस। दैट मीन्स टू विन अ बैटल यू डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ वायलेंस। सो इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज अ सत्याग्रह? सत्याग्रह इज अ नॉन अग्रेसिव, दैट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ वायलेंस, इट इज अ peaceful mass agitation that is against the oppressor and injustice. किसी भी injustice के against, किसी भी oppression के against जब आप एक peaceful तरीके से mass agitation करते हैं, अपना जो आप unhappiness है आप जब show कर रहे होते हैं और आप सामने वाले को, that means जो आपके साथ गलत कर रहा है और उसकी conscience को आप उसकी कॉन्शियंस को जब आप अपील कर रहे होते हैं तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है और फिर वो जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको वो करना बंद कर देगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सत्याग्रह मूवमेंट। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, सो द ओनली मेथड टू विन अ बैटल इज नॉन वायलेंस। बेसिकली जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टिंग में चलाए।
फर्स्ट था 1917 में चंपारण में। चंपारण एक बिहार में एक जगह है, वहाँ पर बहुत ही ऑपरेसिव एक प्लांटेशन सिस्टम था। सिस्टम का नाम था तिनकटिया सिस्टम। तिनकटिया सिस्टम में जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको 3/20 लैंड में इंडिगो ग्रो करनी थी। लेकिन अब हुआ क्या, बिकॉज जर्मन डाई आ गई, जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई आ गई, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा, जो इंडिगो वर्कर्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। जैसे ही ये लॉस में जाने लगे, इन्होंने सोचा कि हम प्लांटेशन में अपना जो इंडिगो हम ग्रो कर रहे हैं, हम इंडिगो ना ग्रो करके कुछ और फूड क्रॉप ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ये अपना जो इंडिगो प्लांटेशन से अगर इनको चेंज करना था तो इनको बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट पे करना था ब्रिटिशर्स को, जो बहुत ही एक ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। तो गांधी जी ने जो पीजेंट्स हैं यहाँ पर, जो किसान हैं, उनको इंस्पायर किया कि जो इस सिस्टम के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करें, एक सत्याग्रह मूवमेंट करें, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। देन दूसरा उन्होंने जो मूवमेंट किया, सत्याग्रह मूवमेंट, वो 1918 में किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात में है। गुजरात में यहाँ पर क्या हुआ था, जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे। रीज़न, बिकॉज यहाँ पर जो क्रॉप फेलियर हो गया था, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो गया था ड्यू टू द ड्रॉट। बहुत ही ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से उनकी जो क्रॉप थी वो बहुत फेल हो चुकी थी। लेकिन क्रॉप फेलियर के बावजूद उनको बहुत ज़्यादा रेंट पे करना था ब्रिटिशर्स को, बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू पे करना था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। यहाँ पर भी गांधी जी ने जो यहाँ के जो किसान हैं यहाँ पर उनको आके बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया कि वो जो टैक्स है उसको ना पे करें ब्रिटिशर्स को, और यहाँ पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मिली। देन उसके बाद 1918 में फिर दोबारा अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स हैं, कॉटन मिल वर्कर्स हैं, इनके बीच में रहकर ही गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पर भी गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली। तो जो सत्याग्रह मूवमेंट है हमारी कंट्री में, जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो पहला किया था चंपारण में, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और तीसरा किया था अहमदाबाद, जो कि गुजरात में ही एक डिस्ट्रिक्ट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट 1919। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था हमारी कंट्री में जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए। तो इस वाले एक्ट का बेसिक मोटिव क्या था और इसके फीचर क्या थे? इसके दो बेसिक फीचर थे। फर्स्ट इज इट गिव्स पावर टू गवर्नमेंट to repress political activities in the country. That means any kind of political activities that is happening in the country during that time, this act will repress them, or it gives power to the government to repress these kind of activities in the country. और सेकेंड पावर इस एक्ट ने जो गवर्नमेंट को दी वो ये दी, दैट allows detention of political prisoners. That means this act allows detention of political prisoners without any trial for 2 years. For 2 years. That means हमारी कंट्री में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये चीज़ लगने लगी कि जितने भी जो एक्टिविटीज़ जो हमारी कंट्री में हो रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो दैट इज़ वाई दे ब्रिंग आउट दिस एक्ट, दैट इज़ द रॉलेट एक्ट 1919, which gives very much power to the government so that they could repress the political activities in the country, and it also allows the detention of political prisoners without trial for 2 years. So ये बहुत ही हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी, एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट हो रहे थे, उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने ये डिसाइड किया दैट ही विल लॉन्च सत्याग्रह मूवमेंट इन आवर कंट्री अगेंस्ट दिस एक्ट, सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस एक्ट। सो ही डिसाइडेड दैट ऑन 6 अप्रैल देयर वुड बी a nationwide हड़ताल in our country.
सो 6 अप्रैल को उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये सोचा कि 6 अप्रैल को हमारी कंट्री में हम नेशन वाइड हड़ताल करेंगे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को ये पता चला कि इस टाइप की कुछ भी एक्टिविटी हमारी कंट्री में होने वाली ही है और जितने टाइप के जो प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में, जो स्ट्राइक्स हमारी कंट्री में जो उस टाइम हो रही थी, उनको गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से रिप्रेस किया और उसके बाद हमारी कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ जो बेसिकली है ये अमृतसर में लगाया गया था, बिकॉज जितनी भी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस टाइम पे हो रही थी ये अमृतसर में हो रही थी। व्हाट इज़ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ इज़ अ मिलिट्री रूल। दैट मीन्स अब हमारी कंट्री में अमृतसर वाले एरिया में मिलिट्री जो है वो रूल करेगी। इसकी वजह से जो मिलिट्री रूल लगाया था, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में क्रिएट हुई और हमारी कंट्री में हमको ये पता चला कि जो ब्रिटिशर्स हैं हमको बहुत ही रिप्रेस करने आए हैं, वो हमको रूल करना चाहते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज ये हमको बिल्कुल भी पावर नहीं देना चाहते हैं। और इसका पता हमको 13 अप्रैल 1919 में हमको पता चला कि जो ब्रिटिशर्स है उसका जो ब्रूटल फेस है वो हमको 13 अप्रैल 1919 में रिवील हुआ। इस दिन क्या ऐसा स्पेशल हुआ था? इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। अब हुआ क्या, 13 अप्रैल को इस वाले बाग में बहुत सारे लोग गैदर हुए। वो क्यों हुए थे? बिकॉज 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन भी था। तो जलियांवाला बाग में कुछ जो लोग थे वो बैसाखी का सेलिब्रेशन करने आए थे। सम पीपल केम फॉर सेलिब्रेशन ऑफ बैसाखी एंड सम पीपल केम टू प्रोटेस्ट फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन जैसे ही जनरल डायर को इस बात का पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, उन्होंने जो जलियांवाला बाग में एक एंट्री थी, जो एग्ज़िट, दैट मीन्स एक ही एग्ज़िट था वहाँ पर उन्होंने उस एग्ज़िट को क्लोज़ कर दिया और जितने भी जो लोग यहाँ पर, जो हज़ारों में जो लोग यहाँ पर जमा थे, उन लोगों पे ओपन फायर कर दिया। उन्होंने जब ओपन फायर किया तो यहाँ पर बहुत ही हज़ारों लोग मर गए थे और जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही वॉयलेंट तरीके से रिएक्ट किया। दैट मीन्स लोगों ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट के जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, रेलवेज़ हैं, उन पे बहुत ही वॉयलेंट तरीके से अटैक किया। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस जो भी वायलेंस जो हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से रिप्रेस किया। गवर्नमेंट ने इसको कैसे रिप्रेस किया? गवर्नमेंट ने कई गाँवों में बॉम्ब लगा दिए, बॉम्ब से उड़ा दिए और कई जगह पर उन्होंने लोगों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके पर बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया। तो उसके बाद जैसे ही गांधी जी को ये पता चला कि गवर्नमेंट है बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस मूवमेंट को और जो भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से रिप्रेस कर रही है, तो इसीलिए गांधी जी ने जो मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उन्होंने उसी टाइम उस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। अब उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट क्या है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।